Here I am going to talk how our body is protected and which systems are involved to protect the body. So mainly our body is protected by two systems. One is immune system and second one is integumentary system. So first, immune system. The immune system consists of white blood cell, tissue cell derived from white blood cell, thymus, lymph nodes, and lymph vessels that protect the body from pathogen like bacteria, virus, parasite, and fungi. The immune system provides a special mechanism to distinguish body own cell from foreign cells. Here, this is the immune cell. This is the body's own cell, which contain self antigen. The immune cell recognize the self antigen and differentiate from antigen or non-self antigen. So, body's own cell is not attacked by immune cell. Then, to destroy the invader by phagocytosis or by releasing antibodies that either destroy or neutralize the pathogen. Here, this is the immune cell and this is the bacteria which contain non-self antigen. The immune cell recognize the bacteria and engulf the bacteria. Then the lysozyme present in the immune cell fuse with the bacteria containing vesicle. Then the bacteria is digested by lysozyme and finally digested materials are expelled from the immune cell. Then integumentary system, the skin and its various parts like hair, nail, glands and other structure that cover and protect the deeper tissue and organ of the body. It also provides a boundary between internal environment of the body and the outside world. The integumentary system is also important for the regulation of body temperature and excretion of waste. This system provides a sensory interface between the body and outside world. Then control system of the body. The human body has thousands of control system. The most complex control system that present in the cell it is genetic control system. This system controls all the intracellular and extracellular function from the nucleus of the cell. Many other control systems operate within the organ to control function of the individual parts of the organs. Others operate through the entire body to control the function of the interrelation between the organs. Here, some examples are noted. The respiratory system and nervous system regulates the concentration of carbon dioxide in the extracellular fluid. The liver and pancreas mainly regulates the concentration of glucose in the extracellular fluid. The kidney regulates the concentration of ions in the extracellular fluid. This is one of the example among the above three examples which I am going to explain. Here this is the brain and this is the heart. The chemoreceptor mainly found in the carotid body and aortic body. The carotid body located at the bifurcation of the common carotid artery at the base, whereas the aortic body located at the arch of aorta. The chemoreceptor are sensory cell that respond to chemical composition changes in the blood. The information transferred to the brain respiratory center from aortic body through vagus nerve and from carotid body to the brain through the glossopharyngeal nerve. When there is increase in arterial carbon dioxide in the blood that stimulate the chemoreceptor present in the carotid body and aortic body. Then the signal sent to the respiratory center of the brain that stimulate respiratory center and send signal to the respiratory muscle that causes increase in breathing and finally return back the normal concentration of CO2 in the arterial blood.
Then normal ranges of some extracellular fluid constituents. Here in this table, it is mentioned the normal ranges of some extracellular fluid constituents. If the extracellular fluid constituents crosses the limit beyond the normal ranges, causes abnormalities in the body or serious health issue or even death. Increase in body temperature 11 degree Fahrenheit or 7 degree centigrade above normal causes increased cellular metabolism and destroy the cell. There are body's several systems like skin, respiratory system, GIT, excretory system, skeletal muscle and nervous system are involved to maintain the normal body temperature. pH value 0.5 on either side of the normal causes lethal. Increase in pH is known as alkalosis and decrease in pH known as acidosis. These systems which are involved in regulation of pH are mainly respiratory system, blood and kidney. Decreased potassium less than 1/3 normal causes paralysis due to inability of the nerve to carry signal. Increase in potassium 2 or more times normal causes heart muscle to be severely depressed. Decreased calcium ion 1/2 normal causes tetanic contraction of the muscle due to excessive nerve impulse generation. Decreased glucose 1/2 normal causes mental irritability, convulsion and dizziness. हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारा बॉडी ये कैसे प्रोटेक्ट होता है और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है. तो मेनली दो तरह के सिस्टम जो होता है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. एक होता है इम्यून सिस्टम, सेकेंड वन होता है एंटीगुमेंटरी सिस्टम. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम. हमारा इम्यून सिस्टम किससे बना हुआ होता है? WBC, टिश्यू सेल, थाइमस, लिम्फ नोड और लिम्फ वेसल से ये बना हुआ होता है. ठीक है. तो इसका मेनली काम क्या होता है? ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. किससे प्रोटेक्ट करता है? जो पैथोजन होता है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट या फिर फंगी. फिर उसके बाद जो ये इम्यून सिस्टम है ये बॉडी को एक स्पेशलाइज मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है. ठीक है. जो कि बॉडी के खुद के सेल को फॉरेन बॉडी से या फिर फॉरेन सेल से डिफरेंशिएट करता है. यहाँ पे ये हो गया ह्यूमन सेल और ये हो गया बॉडीज के ओन सेल. ठीक है. तो बॉडीज के ओन सेल में एक सेल्फ एंटीजन प्रेजेंट होता है. तो ह्यूमन सेल क्या करता है? इसे रिकॉग्नाइज करता है सेल्फ एंटीजन को और बॉडी के खुद के सेल को अटैक नहीं करता है. इम्यून सिस्टम इन्वेडर को डिस्ट्रॉय करता है. कैसे करता है? बाय फागोसाइटोसिस और बाय रिलीजिंग एंटीबॉडी. ठीक है. या तो उसे डिस्ट्रॉय करता है या फिर न्यूट्रलाइज कर देता है. यहाँ पे ये हो गया इम्यून सेल और ये हो गया बैक्टीरिया. तो इम्यून सेल क्या करता है? इसे रिकॉग्नाइज करता है बैक्टीरिया को और फिर उसे एनगल्प करता है. एनगल्प करने के बाद जो इम्यून सेल में लाइसोजाइम होता है वो क्या करता है? वेसिकल कंटेनिंग बैक्टीरिया में फ्यूज होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम से बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करता है. और जो डाइजेस्टेड बैक्टीरियल मटेरियल होता है फिर वो इम्यून सेल से बाहर हो जाता है. देन इंटीगुमेंटरी सिस्टम. इंटीगुमेंटरी सिस्टम की स्किन और इसके वेरियस पार्ट्स जैसे कि हेयर, नेल, ग्लैंड्स और कुछ दूसरे स्ट्रक्चर जो कि बॉडी के डीपर टिश्यू और ऑर्गन को कवर और प्रोटेक्ट करता है. और ये एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट और आउटसाइड वॉल के अंदर. और ये सिस्टम टेम्परेचर रेगुलेशन करता है. उसके साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे वो एक्सक्रीशन करता है. इंटीगुमेंटरी सिस्टम एक सेंसरी इंटरफेस प्रोवाइड करता है बॉडी और आउटसाइड वॉल के अंदर. देन कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी में लगभग 1000 कंट्रोल सिस्टम होता है. सबसे कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम जो कि जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फंक्शन को. और कुछ कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट करते हैं ऑर्गन के अंदर ही जो कि ऑर्गन के इंडिविजुअल पार्ट को कंट्रोल करता है. और कुछ कंट्रोल सिस्टम पूरे बॉडी से ऑपरेट होते हैं जो कि कंट्रोल करता है ऑर्गनों के
पारस्परिक फंक्शन को। जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे वो रेगुलेट करते हैं। देन लीवर और पैनक्रियाज, ये रेगुलेट करते हैं ग्लूकोज के कॉन्सेंट्रेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। देन किडनी, ये रेगुलेट करते हैं आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। यहाँ के 3 एग्जाम्पल में से ये एग्जाम्पल को हम यहाँ पे डिटेल देखते हैं। जैसे कि ये हो गया ब्रेन और ये हो गया हार्ट। तो मेनली केमो रिसेप्टर एक तो कैरोटिड बॉडी में प्रेजेंट होता है और एक आउटिक बॉडी में। तो ये कैरोटिड बॉडी होता कहाँ पे है, मेनली जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होता है वो बाइफर्केट होके बनता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो यहाँ पे जो बेस होता है, यहाँ पे कैरोटिड बॉडी प्रेजेंट होता है। आउटिक बॉडी से इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाता है, वो किससे जाता है, वैगस नर्व से जाता है। और जो कैरोटिड बॉडी से इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाता है वो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व से जाता है। अगर आर्टेरियल कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होता है ब्लड में तो वो स्टिमुलेट करता है केमो रिसेप्टर, जो कि प्रेजेंट होता है कैरोटिड बॉडी और आउटिक बॉडी में। देन सिग्नल सेंड होता है ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर को, जो कि स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेटरी सेंटर को। देन सिग्नल सेंड करता है रेस्पिरेटरी मसल को। देन ब्रीदिंग में इंक्रीज होता है, जो कि आर्टेरियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को नॉर्मल करता है। देन नॉर्मल रेंजेस ऑफ सम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसी टेबल्स में कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूएंट की नॉर्मल रेंजेस है। किसी भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूएंट अगर जो उनके नॉर्मल रेंजेस होता है उससे अगर वो क्रॉस करते हैं तो जैसे कि बॉडी में कुछ अबनॉर्मलिटीज होता है और सीरियस हेल्थ इशू भी होता है और डेथ भी होता है। जैसे कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंजेस से अगर 11 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ रहा है या फिर 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है तो वो मेनली बॉडी में क्या करता है, इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म करता है, सेल का डिस्ट्रॉय भी करता है। कुछ सिस्टम होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन के लिए, जैसे कि स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीएटी, एक्सक्रीटोरी सिस्टम, स्केलेटल मसल एंड नर्वस सिस्टम। देन पीएच वैल्यू 0.5 जो कि नॉर्मल वैल्यू से अगर बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है तो वो भी बॉडी के लिए लिथल होता है। अगर पीएच इंक्रीज हो रहा है तो ये वाला कंडीशन होता है अल्कालोसिस। अगर पीएच डिक्रीज हो रहा है तो ये वाला कंडीशन होता है एसिडोसिस। जैसे कि कुछ सिस्टम्स होते हैं जो कि बॉडी के पीएच को मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड और किडनी। पोटासियम आयन कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल से 1/3 अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो पैरालिसिस करता है। किस लिए करता है, क्योंकि नर्व जो सिग्नल को कैरी कर नहीं पाता है। अगर पोटासियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल वैल्यू से 2 और मोर टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करता है, हार्ट मसल को सीवियरली डिप्रेस करता है। देन कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर नॉर्मल वैल्यू से 1/2 डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या करता है, टिटानिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। किस लिए होता है, ड्यू टू एक्सेसिव जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। देन ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन अगर नॉर्मल वैल्यू से 1/2 डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या करता है, मेंटल इरिटेबिलिटी, कन्वल्सन एंड डिजीनेस करता है।